یہ قصہ 40 ایسے چوروں کا ہے جنہوں نے بے شمار شہروں کو لوٹا تھا۔ ان کا خوف پورے ایران میں پھیلا ہوا تھا۔ جہاں وہ پہنچ جاتے وہاں کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایران میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا علی بابا۔ دونوں نہایت سادہ اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر قسمت نے پلٹا کھایا۔ قاسم نے ایک مالدار خاندان میں شادی کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے پاس بڑا گھر، کامیاب کاروبار اور آسائشوں سے بھری زندگی آ گئی۔ دوسری طرف علی بابا نے ایک غریب لڑکی سے شادی کی۔ وہ روزانہ صبح جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلاتا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو اچانک اسے گھوڑوں کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا اور ادھر دیکھا تو کئی سوار تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ ڈاکو نہ ہو۔ فوراً اس نے اپنے گدھے کو درخت کے پیچھے چھپا دیا اور خود ایک اونچے درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سوار درخت کے نیچے آ پہنچے۔ علی بابا نے غور سے دیکھا تو وہ 2-4 نہیں بلکہ پورے 40 آدمی تھے۔ سب کے کندھوں پر بھاری بوریاں تھیں۔ قریب ہی ایک بڑا پتھریلا دروازہ موجود تھا۔ ان کے سردار نے اونچی آواز میں کہا، "کھل جا سم سم"۔ یہ الفاظ سنتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی بابا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سارے چور اندر داخل ہو گئے اور دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے، پھر وہی الفاظ کہے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب علی بابا کا خوف تجسس میں بدل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور بولا، "کھل جا سم سم"۔ دروازہ واقعی کھل گیا۔ اندر جا کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ خزانے سے بھری غار تھی۔ سونے چاندی کے ڈھیر، قیمتی جواہرات اور بے شمار دولت وہاں موجود تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے چند بوریاں اٹھا لایا، انہیں گدھے پر رکھا اور اوپر لکڑیاں ڈال دیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اس نے کہا، "بند ہو جا سم سم"۔ دروازہ بند ہو گیا اور وہ خاموشی سے اپنا مال گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سونا چھپانے کے لیے زمین میں گڈھا کھودنا شروع کیا۔ اس کی بیوی نے کہا، "میں قاسم کے گھر سے ترازو لے آتی ہوں تاکہ سکوں کو تول سکیں"۔ لیکن قاسم کی بیوی کو شک ہو گیا کہ آخر علی بابا کے گھر میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اس نے چالاکی سے ترازو کے پلڑے کے نیچے ہلکی سی چکنائی لگا دی۔ جب علی بابا کی بیوی نے سکے تول کر ترازو واپس کیا تو ایک اشرفی اس سے چپک کر رہ گئی۔ شام کو جب قاسم گھر آیا اور اس نے وہ سکہ دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی بیوی نے غصے بھرے انداز میں کہا، "تم سمجھتے ہو تمہارا بھائی غریب ہے؟ نہیں، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ سکوں کو گننے کے بجائے تولتا ہے۔ یہ اشرفی اس کا ثبوت ہے"۔ یہ سن کر قاسم بے چین ہو گیا۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر علی بابا کے پاس یہ سب کہاں سے آیا۔ اگلی صبح وہ سیدھا علی بابا کے گھر پہنچا اور بولا، "مجھ سے بات چھپانے کی ضرورت نہیں، صاف بتاؤ یہ دولت کہاں سے آئی ہے"۔ علی بابا نے پہلے انجان بننے کی کوشش کی، مگر قاسم نے وہ اشرفی دکھا کر کہا، "یہ سکہ تمہارے گھر سے آیا ہے، اب سچ بتاؤ"۔ اب بات چھپانا ممکن نہ تھا، اس لیے علی بابا نے سارا راز بتا دیا اور وہ جادوئی الفاظ بھی بتا دیے جن سے غار کھلتی تھی۔ یہ سنتے ہی قاسم کے دل میں لالچ بڑھ گیا۔ اس نے کہا، "کل میں خود وہاں جاؤں گا اور سارا خزانہ لے آؤں گا"۔ اگلے دن وہ 10 خچروں کے ساتھ غار تک پہنچا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، "کھل جا سم سم"۔ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا خزانہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہاں دولت اس سے کہیں زیادہ تھی جتنی اس نے سوچا تھا۔ وہ جلدی جلدی بوریاں بھرنے لگا اور دروازے کے قریب لا کر رکھ دیں۔ لیکن جب باہر نکلنے کا وقت آیا تو وہ جادوئی الفاظ بھول گیا۔ کبھی کہتا، "کھل جا دم دم"، کبھی کہتا، "کھل جا بم بم"، لیکن صحیح الفاظ اسے یاد نہ آئے۔
इसी दौरान शाम के वक्त 40 चोर वापस आ गए। दरवाजे के पास खच्चरों को देखकर वो फौरन समझ गए कि कोई अंदर मौजूद है। सरदार ने कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुलते ही कासिम भागने की कोशिश करने लगा, मगर चोरों ने उसे पकड़ लिया और तलवारों से मार डाला। फिर उसकी लाश को वहीं गार के अंदर छोड़ दिया और खजाना अपनी जगह पर रखकर चले गए। उधर कासिम की बीवी सारी रात इंतजार करती रही। जब सुबह तक वो वापस ना आया तो वो रोती हुई अली बाबा के पास पहुंची और बोली, मुझे डर है कि कासिम किसी मुसीबत में फंस गया है। ये सुनकर अली बाबा परेशान हो गया। अगली सुबह वो गधे लेकर गार की तरफ रवाना हुआ। दरवाजे के करीब पहुंचा तो खून के निशान देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुला तो सामने कासिम की कटी हुई लाश पड़ी थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, मगर उस वक्त सोचने का मौका नहीं था। उसने लाश को एक गधे पर रखा, ऊपर कुछ बोरियां डाल दी ताकि किसी को शक न हो, और खामोशी से वापस आ गया। अली बाबा लाश को कासिम के घर ले आया। दरवाजे पर उनकी होशियार कनीज मार्जीना मौजूद थी। अली बाबा ने उसे सारी हकीकत बता दी और कहा, अब इस बात को छुपाना बहुत जरूरी है, वरना हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मार्जीना निहायत अक्लमंद और हाजिर दिमाग लड़की थी। उसने फौरन कहा, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगी। चंद ही घंटों में उसने पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला दी कि कासिम सख्त बीमार है। कभी वो हकीम के पास जाती, कभी दवाई लेकर आती, ताकि लोगों को यही लगे कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। फिर एक रात अचानक घर से रोने की आवाजें आने लगीं और सबको यकीन हो गया कि कासिम का इंतकाल हो गया है। इसी रात मार्जीना बाजार गई और एक मशहूर दर्जी मुस्तफ़ा को अपने साथ ले आई। उसने उसके हाथ पर एक अशरफी रखकर कहा, मेरे साथ चलना होगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। मुस्तफ़ा पहले हिचकिचाया, लेकिन जब उसे एक और अशरफी मिली तो वो फौरन मान गया। मार्जीना ने उसे आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथ ले गई। जब वो घर पहुंचे तो उसने पट्टी खोली और लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे इस तरह सी दो कि किसी को शक न हो। मुस्तफ़ा ये देखकर घबरा गया, मगर मार्जीना ने एक और अशरफी देकर उसे खामोश कर दिया। लालच के बायस उसने फौरन काम शुरू कर दिया और बड़ी महारत से लाश के टुकड़ों को जोड़ दिया। जब काम मुकम्मल हो गया तो मार्जीना ने उसे मजीद इनाम दिया, दोबारा आंखों पर पट्टी बांधी और उसे वापस उसकी दुकान पर छोड़ आई। जाते हुए सख्ती से कहा, ये बात किसी को न बताना। उसके बाद कासिम की लाश को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और खामोशी से दफन कर दिया गया। किसी को जरा भी शक न हुआ और सबने यही समझा कि वो बीमारी की वजह से फौत हुआ है। दूसरी तरफ अली बाबा ने अपने बेटे को कासिम की दुकान संभालने के लिए बिठा दिया। कासिम की बीवी की ख्वाहिश पर वो सब उसी बड़े घर में रहने लगे। उधर जब चोर दोबारा गार में आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि कासिम की लाश गायब है। सरदार गुस्से में बोला, जरूर कोई और भी है जो हमारे खजाने का राज जान चुका है। अगर हमने उसे न ढूंढा तो हम कभी सुकून से नहीं रह सकेंगे। तमाम चोरों ने कहा, हम उसे जरूर तलाश करेंगे। सरदार ने हुक्म दिया, तुम में से एक शहर जाकर पता लगाए कि हाल ही में किसी की मौत हुई है या नहीं। याद रखो, नाकामी की सजा मौत होगी। एक चोर आगे बढ़ा और बोला, मैं ये काम करूंगा, अगर नाकाम हुआ तो मुझे सजा दे देना। इजाजत मिलने पर वो भेस बदलकर शहर पहुंच गया। इत्तेफाक से वो मुस्तफ़ा दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा और बातों ही बातों में पूछा, इतनी कम रोशनी में तुम्हें काम कैसे नजर आता है? मुस्तफ़ा ने फख्र से जवाब दिया, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं वो दर्जी हूं जिसने कल एक लाश के टुकड़ों को भी इसी रोशनी में सी दिया था। ये सुनकर चोर चौंक गया। उसे यकीन हो गया कि यही वो सुराग है जिसकी उसे तलाश थी। उसने नरमी से एक अशरफी उसके हाथ पर रखी और कहा, मुझे वो घर दिखा दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुस्तफ़ा ने कहा, मुझे रास्ता याद नहीं क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। चोर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता हूं, तुम बस रास्ता महसूस करते हुए चलते रहना। एक और अशरफी के लालच में वो तैयार हो गया। यूं वो दोनों चलते हुए कासिम के घर तक पहुंच गए। मुस्तफ़ा ने कहा, यही वो जगह है।
चोर ने दरवाजे पर चाक से एक निशान लगा दिया ताकि बाद में उसे पहचान सके। निशान लगाकर वो चोर वापस अपने सरदार के पास गया और खुशी से सारी बात बताई। उधर मार्जिना किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उसकी नजर दरवाजे पर बने हुए चाक के निशान पर पड़ी। वो फौरन समझ गई कि कोई ना कोई दुश्मन यहां तक पहुंच चुका है। बगैर वक्त जाया किए उसने चाक उठाया और पूरे मोहल्ले के हर दरवाजे पर वैसा ही निशान बना दिया। अगले दिन जब सरदार अपने साथी के साथ उस घर को देखने आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि हर घर के दरवाजे पर एक जैसा निशान मौजूद है। वो गुस्से से बोला, तुमने हमें धोखा दिया है। और उसी वक्त इस नाकाम चोर को सजा दे दी गई। जब एक चोर अपनी जान गंवा बैठा तो बाकी सब खौफजदा हो गए। मगर फिर एक और चोर आगे बढ़ा जो खुद को बहुत चालाक समझता था। वो भी मुस्तफा दर्जी के पास गया, उसे रिश्वत दी और उसी तरह आंखों पर पट्टी बांधकर कासिम के घर तक पहुंच गया। लेकिन इस बार उसने सोचा कि वो पिछली गलती नहीं करेगा। उसने सुर्ख रंग का चाक निकाला और दरवाजे पर एक खास निशान बना दिया ताकि आसानी से पहचान हो सके। मगर इत्तेफाक से मार्जिना फिर बाहर निकली और उसकी नजर इस नए निशान पर पड़ गई। वो फौरन समझ गई कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। उसने फिर वही तरकीब इस्तेमाल की और पूरे मोहल्ले के दरवाजों पर वैसा ही सुर्ख निशान बना दिया। जब वो चोर अपने सरदार के साथ वापस आया तो एक बार फिर हर घर पर एक जैसा निशान देखकर हैरान रह गया। सरदार गुस्से से भर गया और इस चोर को भी सजा दे दी गई। अब 40 में से 2 चोर मारे जा चुके थे और बाकी सब खौफ में मुब्तला थे। आखिरकार सरदार ने फैसला किया कि अब वो खुद इस काम को अंजाम देगा। वो खुद शहर गया और मुस्तफा दर्जी की मदद से उस घर तक पहुंचा। इस बार उसने निशान नहीं लगाया बल्कि घर की जगह को अच्छी तरह जहन में महफूज कर लिया। अब उसने एक नया मंसूबा बनाया। उसने 29 खच्चर तैयार किए और 38 बड़े बड़े खाली तेल के पीपे मंगवाए। उनमें से सिर्फ एक पीपा वाकई तेल से भरा हुआ था, जबकि बाकी सब में एक एक चोर को छिपा दिया गया। हर चोर के पास हथियार मौजूद थे और ऊपर से पीपों पर तेल लगा दिया गया ताकि वो असली लगें। इस तरह वो काफिला एक ताजर की शक्ल में शहर में दाखिल हुआ। सरदार सीधा अली बाबा के घर पहुंचा। इत्तेफाक से अली बाबा बाहर मौजूद था। सरदार ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूर से तेल लेकर आया हूं, रात हो गई है, अगर आप इजाजत दें तो एक रात यहां ठहर जाऊं। अली बाबा उसे पहचान न सका और बड़ी खुशदिली से उसे मेहमान बना लिया। यूं खच्चर और पीपे एक कमरे में रख दिए गए और सरदार के लिए अलग कमरा तैयार कर दिया गया। मार्जिना को हुक्म दिया गया कि मेहमान के खाने पीने का इंतजाम करें। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। असल मंसूबा ये था कि रात को सरदार एक इशारा देगा और पीपों में छिपे हुए चोर बाहर निकलकर एक साथ हमला करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात गुजरने लगी और सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। उधर मार्जिना घर के काम समेट रही थी कि अचानक उसने देखा कि चिराग के लिए तेल खत्म हो गया है। उसने सोचा, क्यों ना इन पीपों में से थोड़ा सा तेल ले लिया जाए। वो एक पीपे के करीब गई ही थी कि अंदर से आहिस्ता सी आवाज आई, क्या वक्त आ गया, क्या हम बाहर निकलें? ये सुनकर वो चौंक गई, मगर उसने फौरन अपनी समझदारी का मुजाहिरा किया और भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। फिर वो दूसरे पीपे के पास गई, वहां से भी यही आवाज आई। इस तरह हर पीपे से इसी किस्म की सरगोशी सुनाई दी। अब मार्जिना सब कुछ समझ चुकी थी कि इन पीपों में तेल नहीं बल्कि दुश्मन छुपे हुए हैं। उसने फौरन असल तेल वाले पीपे से तेल निकाला, उसे अच्छी तरह गर्म किया और एक एक करके तमाम पीपों में डाल दिया। यूं उनमें छुपे तमाम चोर खत्म हो गए और कोई भी बाहर न निकल सका। आधी रात के बाद सरदार जागा और उसने अपने साथियों को इशारा देने के लिए कंकरियां फेंकी, मगर कोई जवाब न आया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर तरफ खामोशी थी। परेशान होकर वो खुद उस कमरे में गया जहां पीपे रखे थे। वहां अजीब सी बू फैल रही थी। जब उसने गौर से देखा तो उसे हकीकत का अंदाजा हुआ कि उसके तमाम साथी खत्म हो चुके हैं। ये देखकर वो खौफजदा हो गया और फौरन दीवार फलांग कर वहां से फरार हो गया। सुबह हुई तो मार्जिना ने अली बाबा को सब कुछ दिखाया। जब पीपे खोले गए तो अंदर से लाशें देखकर वो हैरान रह गया।
मार्जीना ने कहा, बेहतर यही है कि इन सब को खामोशी से दफन कर दिया जाए, वरना ये बात फैल जाएगी। अली बाबा ने उसकी बात मान ली। एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और तमाम लाशों को खच्चरों समेत दफन कर दिया गया। कुछ दिनों के अंदर खच्चरों को भी बेच दिया गया ताकि कोई निशान बाकी न रहे। इस तरह एक बार फिर अली बाबा की जान मार्जीना की अक्लमंदी की वजह से बच गई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि चोरों का सरदार अब भी जिंदा था और उसके दिल में इंतकाम की आग पहले से ज्यादा भड़क रही थी। चोरों का सरदार अब अकेला रह गया था। उसके दिल में बदले की आग और भी तेज हो चुकी थी। कुछ दिन वो खौफ और परेशानी में गुजारता रहा। फिर उसने सोचा, शहर जाकर देखता हूं, शायद अली बाबा पकड़ा गया हो या उसका कोई सुराग मिल जाए। जब वो शहर पहुंचा तो उसे कहीं भी ना अली बाबा का जिक्र मिला और ना ही चोरों की लाशों का। इससे उसे यकीन हो गया कि अली बाबा ने सब कुछ खुफिया तरीके से संभाल लिया है। अब उसने एक नया मंसूबा बनाया। उसने शहर में एक बड़ी दुकान किराए पर ली और अपना नाम ख्वाजा हसन रख लिया। वो कीमती सामान बेचने लगा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मशहूर हो गया। इत्तेफाक से उसने अपनी दुकान अली बाबा के बेटे की दुकान के सामने ही ली और धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाने लगा। कुछ ही अरसे में उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात बन गए। एक दिन अली बाबा ने उसे अपने घर खाने पर मदऊ किया। सरदार ने बहाना बनाया, मैं बीमार हूं, हकीम ने मुझे नमक खाने से मना किया है। अली बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बगैर नमक के खाना तैयार कर लिया जाएगा। ये बात सुनकर मार्जिना को शक हुआ। उसने दिल में सोचा, ये कैसा आदमी है जो नमक तक नहीं खाता। उसे फौरन खतरे का एहसास हुआ, मगर वो खामोश रही। उसने खाना तैयार किया और जब वो खाने की थाली लेकर गई तो उसने गौर से मेहमान को देखा। अचानक वो उसे पहचान गई। यही वो चोरों का सरदार था। उसके कपड़ों के अंदर खंजर भी छुपा हुआ था। मार्जिना ने दिल ही दिल में फैसला किया कि आज इस खतरे को खत्म करना ही होगा। वो फौरन अंदर गई, अपने कपड़े बदले और वापस आकर अली बाबा से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं मेहमान के सामने रक्स पेश करूं। अली बाबा ने खुश होकर इजाजत दे दी। मार्जिना ने रक्स शुरू किया। उसके हाथ में एक खंजर था जिसे उसने बड़ी महारत से अपने अंदाज में छुपा रखा था। वो दाएं बाएं घूमती रही जैसे ये सब रक्स का हिस्सा हो। आखिर में वो अली बाबा के पास आई और इनाम मांगा। अली बाबा ने उसे अशरफी दी। फिर वो उसके बेटे के पास गई, उसने भी इनाम दिया। आखिर में वो मेहमान यानी ख्वाजा हसन के करीब पहुंची। जैसे ही वो इनाम देने के लिए झुका, मार्जिना ने फौरन खंजर उसके सीने में उतार दिया। वो वहीं गिर गया और फौरन मर गया। ये देखकर अली बाबा और उसका बेटा घबरा गए और बोले, ये तुमने क्या कर दिया? ये हमारा मेहमान था। मार्जिना ने जवाब दिया, ये कोई मेहमान नहीं था बल्कि हमारा दुश्मन था। यही चोरों का सरदार है। देखें, उसके पास खंजर भी है। उसने नमक इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो दुश्मनी खत्म नहीं करना चाहता था। ये सुनकर अली बाबा को सारी हकीकत समझ आ गई। वो खुश होकर बोला, मार्जिना, तुमने एक बार फिर हमारी जान बचाई है। उसने इनाम के तौर पर अपने बेटे की शादी मार्जिना से करने का फैसला किया और उसका बेटा भी खुशी से तैयार हो गया। अगले दिन सरदार की लाश को खामोशी से दफन कर दिया गया। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे तक अली बाबा गार की तरफ नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई और खतरा बाकी ना हो। लेकिन जब काफी वक्त गुजर गया तो वो दोबारा वहां गया। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर देखा तो सारा खजाना वैसा ही मौजूद था। अब उसे यकीन हो गया कि बाकी तमाम चोर खत्म हो चुके हैं और अब इस खजाने पर सिर्फ उसी का हक है। उसने ये राज अपने बेटे को भी बता दिया। यूं अली बाबा और उसकी औलाद हमेशा आराम और खुशहाली की जिंदगी गुजारती रहीं और उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें बताएं कि आपको कैसी स्टोरीज पसंद हैं। मैं वैसी स्टोरी आपके लिए बना दूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।